نئے صوبوں کے قیام کی تجویز سیاسی بحث کا موضوع بن گئے۔ خالد مقبول صدیقی نے صوبوں کی تقسیم آئین کا تقاضا قرار دے دی۔ ناقابل تقسیم اگر کچھ ہے تو وہ ملک ہے۔ صوبوں کی تقسیم کو غداری کہنے والے خود سب سے بڑے غدار ہیں۔ ایم پاکستان کے چیئرمین کی پریس کانفرنس۔ فاروق ستار نے نئے انتظامی یونٹس کا قیام ناگزیر قرار دے دیا۔ قومی اتفاق رائے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلانے اور ریفرنڈم کی تجویز۔ آبادی کئی گنا بڑھ چکی، صوبے آج بھی 4 ہیں۔ پنجاب آبادی کے لحاظ سے 180 ملکوں سے بڑا، بلوچستان کا رقبہ بھی 180 ممالک سے زیادہ ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے حقائق سامنے رکھ دیے۔ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات اور وسائل نچلی سطح پر تقسیم نہ کیے جانے کا شکوہ۔ ساری چیزیں، ان ساری سازشوں کو عوام جانتے ہیں، اور جب یہ کہہ رہا ہے نا کہ کاکروچ اگر نکلیں گے تو یہ کریں گے، تو کاکروچ نکلے ہیں۔ ایوب خان کے خلاف بھی نکلے تھے کاکروچ، یحییٰ خان کے خلاف بھی نکلے تھے، تو ضیاء خان کے خلاف بھی نکلے تھے، تو مشرف خان کے خلاف بھی نکلیں گے۔ ابھی بھی کاکروچ نکلیں گے تو ان کے خلاف ہی نکلیں گے۔ تنقید کرنے والے خالد مقبول صاحب اپنے آپ کو غداری کا مرتکب کر رہے ہیں، کیونکہ آئین میں جو لکھا ہوا ہے اسے الگ ہٹ کے بات کرتے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی صوبوں کی تقسیم کے آئینی طریقے کے خلاف بات کر کے غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے وفاقی وزیر کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو کی نام لیے بغیر محسن نقوی پر کڑی تنقید۔ پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور ہونے کے باوجود نیا صوبہ نہ بننے پر سوال اٹھا دیا۔ سندھ کے وزیر محنت نے صوبوں کی تقسیم کے لیے صوبائی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کی قرارداد ضروری قرار دے دی۔ رانا ثنا نے بھی نام لیے بغیر وزیر داخلہ محسن نقوی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ زرداری صاحب کے ایک برخوردار کہتے ہیں موجودہ سسٹم گر چکا، چلنے کے قابل نہیں رہا۔ انہوں نے اس سسٹم میں ہی 30 سال کا سفر 3.5 سال میں طے کیا۔ پارلیمانی جمہوری نظام کا سسٹم قائد اعظم نے ہی اس ملک کو دیا تھا۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر کی گفتگو۔ شاہد خاقان عباسی نے صرف صوبے بنانا ناکافی قرار دے دیا۔ ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے سارا نظام بدلنا ہوگا۔ وزیر داخلہ کے شکر گزار ہیں کہ 4 سال کے بعد انہیں احساس ہو گیا کہ ملک نہیں چل رہا۔ حکمرانوں نے بس، جہاز اور گاڑیاں خریدنی ہیں۔ آئین کے مطابق چلے بغیر کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ فیلڈ مارشل نے پاک چین افواج کو علاقائی امن اور مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے حقیقی شراکت دار قرار دے دیا۔ پاکستان اور چین کی دوستی منفرد، آزمودہ اور ہر طرح کے علاقائی اور عالمی چیلنجز کے باوجود مضبوط رہی ہے۔ فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا GHQ میں پیپلز لبریشن آرمی کے 99ویں یوم تاسیس پر منعقدہ تقریب میں اظہار خیال۔ چین کے دفاع، قومی ترقی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے PLA کی خدمات کو خراج تحسین۔ چینی سفیر جیانگ زائیڈانگ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کی قربانیوں کی تعریف۔ یادگاری تقریب کے انعقاد پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اظہار تشکر۔ دہشت گردوں اور وطن دشمنوں کے گرد گھیرا تنگ۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع نوشکی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ فتمال ہندوستان کے 7 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں میں خودکش بمبار بھی شامل تھا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کا اسلحہ اور دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد تباہ کر دیا گیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے رزمت میں سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاعات پر ایکشن۔ بھارتی پراکسی فتنال خارج کے 5 دہشت گرد ہلاک۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر حافظ احسان الہی مادر وطن پر قربان۔ پاک فوج کے بہادر افسران نے اگلے مورچوں سے جوانوں کی قیادت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو زبردست خراج تحسین۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم دہرا دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران میں توانائی کے ذخائر پر اگلے چند گھنٹوں میں شدید حملوں کا خدشہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق دونوں ملک پیر سے قبل اب تک کے سب سے شدید حملے ختم کر دیں گے۔ ایران پر شدید حملے جاری رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا جب ایران کہے گا کہ اب وہ مزید جنگ جاری نہیں رکھ سکتا۔ صدر ٹرمپ کی کابینہ کو بریفنگ، جنگ میں کامیابی کا دعویٰ۔
जारियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। कमांडर ईरानी खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि अमेरिका और उसके किराए के सिपाहियों को अंदाजा हो गया कि उनके फौजी सामान में कफन शामिल होना लाजिम है। ईरानी जनरल ने खित्ते के ममालिक को अमेरिका से अपनी वाबस्तगी पर नजरसानी का मशवरा दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास अराक़ची ने ईरान पर हमले में बरतानवी ताउन नाकाबिल कबूल करार दे दिया। 8 मिलीबैंड की ईरान के खिलाफ जंग में शामिल न होने की यकीन दहानी। वाज़े किया बरतानवी हुकूमत मसले का सियासी हल चाहती है। ओमान के करीब ऑयल टैंकर पर नामालूम सम से प्रोजेक्टाइल हमला। टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक वाकया ओमानी शहर लीमा से 20 किलोमीटर दूर पेश आया, जिसके बाद जहाज सफर जारी रखने के काबिल नहीं रहा। कुवैत का ईरान पर ड्रोन हमलों का इल्जाम। हुक्काम के मुताबिक सरकारी इमारत, निजी कंपनी की गाड़ियों और दीगर अहदाफ पर ड्रोन हमले किए गए। तमाम ड्रोन्स फजा में तबाह करने का दावा। कुवैती हुक्काम ने वाज़े कर दिया मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात उठाए जाएंगे। मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात ने अमरीकी दिफाई ज़ख़ायर पर दबाव बढ़ा दिया। मीज़ाइल, दिफाई इंटरसेप्टर्स के ज़ख़ायर तेज़ी से कम होने लगे। अहम दिफाई ज़ख़ायर दोबारा हासिल करने में कम अज़ कम 3 साल लग सकते हैं। दिफाई माहिरीन ने खबरदार कर दिया। हमास की जानिब से गैर मुसल्लह होने पर रजामंदी। पाकिस्तान का गजा अमन मंसूबे पर मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की की सालसी की कोशिशें काबिल तहसीन करार दे दी। तर्जुमान के मुताबिक उम्मीद है कि गजा में देरपा अमन के लिए आलमी कोशिशें नतीजा खेज साबित होंगी। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखने का अज़्म। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोटिंग कल होगी। मुजफ्फराबाद, नीलम और जहलम वैली के इंतखाबी हलकों के साथ मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। लाहौर, कराची, पेशावर, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में मुहाजिरीन की नशिस्तों पर पोलिंग के लिए इंतखाबी सामान की तरसील जारी। कश्मीर के अवाम को वही हकूक़ दिलाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। इसमें से पहले है हक़ हाकमियत। हक़ हाकमियत का मतलब है आपका वोट, आपका फ़ैसला। आप जिसके हक़ में वोट डालें, नतीजा भी उसका हक़ में निकले। कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के मुस्तक़बिल के फ़ैसले कश्मीर के अवाम खुद करे। बिलावल भुट्टो का कश्मीरियों को आम पाकिस्तानियों की तरह हक़ हाकमियत और हक़ मिल्कियत दिलवाने का वादा। कश्मीरी अवाम जिसके हक़ में वोट डालें, नतीजा भी उसके हक़ में निकले। कश्मीर के मुस्तक़बिल के फ़ैसले कश्मीर के अवाम खुद करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वीडियो बयान। मैंने जितने भी बयानात दिए हैं पिछले 2-3 महीने में कश्मीर के रेफरेंस में या कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में या कश्मीर के कुछ जदोजहद है उसके हवाले से मैं आज भी उस पर खड़ा हूँ। ये लोग जो कहते हैं कि आपकी सीटें ख़त्म की जाए, वो इस तरह के जमे गफीर से डरते हैं। ख्वाजा सिर्फ कश्मीरियों से मुतालिक बयानात पर डट गए और साफ कह दिया कि कोई बयान वापस नहीं लूंगा। सियालकोट में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें खत्म नहीं की जाएंगी। सईद अहमद खान, कोर मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। जिस तरह रियासतदार में इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, मीरपुर में इलेक्शन हो चुका है, मुजफ्फराबाद डिवीजन में 2 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो मैं अपनी कश्मीरी अवाम या मुजफ्फराबाद डिवीजन की आवाम से ये मैं मुखातिब हूँ और उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो पुरअमन तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लें। मुहाजिरीन आज़ाद जम्मू कश्मीर का 12 मखसूस नशिस्तें बरकरार और हक़ नुमाइंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। हमारी शनाख्त, नुमाइंदगी और इल्हाक़ पाकिस्तान का अहद नाकाबिल समझौता करार। कलदम एक्शन कमेटी के रहनुमा ने भी आवाम से वोट का हक़ इस्तेमाल करने की अपील कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नायब वज़ीर आज़म और सेनेटर इसाक डार मुलाकात में मौजूद थे। मैं समझता हूँ कि कम से कम करप्शन पे पीपल्स पार्टी लेक्चर ना।
मोरालिटी पे लेक्चर ना दे, डेमोक्रेसी पे लेक्चर ना दे। और बिलावल साहब, आप हमारे लिए मोहतरम हैं, बट 7 दिन से 200 से 300 मिलीमीटर बारिश, हमारी वजीर आला अपने वज़रा को अगर फ्लड आ जाए तो 20-20 दिन फील्ड में रखती हैं, और आप कहते हैं कि ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। काश आप भी वहां पे वैसे ही वासा बना दें। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को करप्शन, अखलाकियात और जमहूरियत पर लेक्चर नहीं देना चाहिए। मरियम नवाज ने पंजाब में तालीम समेत हर शोबे पर खास तवज्जो दी। कराची में 1960 में सर्कुलर रेलवे चलती थी, आज वहां क्या हाल है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सिकंदर बोले, पंजाब में बारिश हो तो हमारी वज़ीर आला अपने वज़रा को 20 दिन तक फील्ड से नहीं निकालती, जबकि बिलावल कहते हैं कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। काश बिलावल भी सिंध में पंजाब जैसा वासा बनाते। अब 2024 में जो इंतखाबात हुए हैं, ये जितना कह लें, जितनी मर्जी कह लें, ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि नून लीग इंतखाबात में बुरी तरह से आ रही है। नून लीग नहीं आ रही है, नवाज शरीफ आ रहा है, अपनी सीट पे आ रहा है, शहबाज शरीफ आ रहा है, अपनी सीट पे आ रहा है, मरियम नवाज आ रही है, अपनी सीट पे आ रही है। हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। बच्चे बच्चे को इल्म है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज इलेक्शंस हारे हैं। आपने हमेशा धांधली से हुकूमत बनाई है, मांगे तांगे की हुकूमत में आप बैठे हैं, हम नहीं। पंजाब के लाखों अफराद ने सिंध के अस्पतालों में इलाज करवाया। सिंध के वज़ीर मेहनत सईद गनी का पंजाब के वज़रा को करारा जवाब। नौजवान निकलेंगे, मैं नौजवानों से अपील भी करता हूं कि इसके लिए निकलें और सड़कों पे आएं। सिर्फ एम्बुलेंस को रास्ता दें, बाकी सड़क पे आकर अपना आईनी पुरअमन सियासी जो एहतजाज का हक है वो इस्तेमाल करें और हुकूमत को पीछे धकेलें, वरना ये खा जाएंगे, मार देंगे। नाअहल लोग कोई मसला हल करने की सलाहियत नहीं रखते, करप्शन खत्म करने पर तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ये क्या तरीका कि आप बेड़ा गर्क करके बयान दे दें कि गवर्नेंस ठीक नहीं। नौजवान पेट्रोलियम कीमतों पर एहतजाज से हुकूमत को पीछे धकेलें, वरना ये आपको खा जाएंगे। रहनुमा ANP मियां इफ्तिखार से जेजुआई और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका वफ्द की मुलाकात। बल्दियाती इंतखाबात और अमन की मखदूश सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात से मुसलसल राह फरार इख्तियार कर रही है। मियां इफ्तिखार हुसैन की गुफ्तगू। कराची में मानसून सीजन की एंट्री, शहर के मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में तेज़ बारिश। सुपर हाईवे स्कीम 33 और II चुंदरीगढ़ रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी। जाम शोरों में भी बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। मानसून बारिशों से रावल डैम में पानी की सतह में इजाफा। पानी की सतह 1748.3 फीट तक पहुंच गई। SDO रावल डैम के मुताबिक इजाफी पानी के अखराज के लिए स्पिल वेज खोल दिए गए। पानी के बहाव के बायस सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। डैम के अतराफ के इलाकाजात में रिहायशियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। दहशतगर्दी का मंसूबा बनाने वाले कलदम तंजीम के 3 कारिंदों को 7-7 साल कैद, 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लाहौर की गालिब मार्केट में PTI रहनुमा कत्ल केस में पेशरफ, 6 मुश्तबा अफराद हिरासत में ले लिए गए। नौशहरा में ब्यूटी पार्लर की 16 साला मुलाजमा के साथ मुबैना इज्तिमाई ज्यादती। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने लड़की के मुंह पर नशा आवर कपड़ा रखा और बेहोश कर दिया और कार में साथ ले गए। 4 अफराद ने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिमान का ताल्लुक नौशहरा के इलाके बदरशी से है। थाना नौशहरा कला में मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी के इलाके मिस्रियाल रोड पर फ्रेंड्स कॉलोनी में नाले में गिरने वाले 7 साला अबू बकर की लाश मिल गई। अबू बकर गुज़श्ता रोज बारिश में नहाते हुए नाले में गिरा था।
कोयटा के नवाही इलाके सुरेंज में कोयले की कान बैठने का वाकया, 45 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। पीडीएमए के मुताबिक दीगर 2 लाशों को भी निकाल लिया गया। मजमूई तौर पर 34 अफराद की लाशें निकाली गईं। शांगला में 16 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुकरी की ज़ियारत में क़ायद रेजिडेंसी पर हाज़री, पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की हाज़री। वज़ीर आला की शहदा ज़ियारत के लवाहिकीन से मुलाकात, शहदा के बुलंदी दर्जात की दुआएं, इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। शहदा कौम का फ़ख्र करार, माते का झूमर करार। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का ऐलान। दसबेला में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा की 4थी बरसी। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद 1 अगस्त 2022 को सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए लसबेला पहुंचे थे। अलमनाक हादसे में ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, पायलट मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा और नायक मुदस्सिर फैयाज भी शहीद हुए। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली ज़हीर इकबाल चुनड़ के वालिद एमएनए मलिक इकबाल चुनड़ इंतकाल कर गए। सियासी और समाजी हलकों का इजहार रंजो गम, बुलंद दर्जात की दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरहूम को मुखलिस कारकुनान और नवाज शरीफ के वफादार साथी करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मरहूम की सियासी और अवामी खिदमात को तादेर याद रखा जाएगा। लीगी कायद नवाज शरीफ का देरीना साथी की बुलंद दर्जात की दुआ। अमरीका तवील अरसे से पाकिस्तान के अहम इक्तिसादी शराकतदारों में शामिल है। पाक अमरीका ताल्लुकात के अगले बाब को सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और जिद्दत से आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का अमरीका के आला सतह के बिजनेस वफ़द से खिताब। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को निजी शोबे के बाहिमी ताउन के जरिए आगे बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। अमरीकी वफ़द से मुलाकात मुमकिन बनाने पर SIFC से इजहार तशक्कुर। सानहाय पटन को 35 साल बीत गए। भारतीय फौजियों ने 1 अगस्त 1990 के दिन मकबूजा कश्मीर में बारामौला श्रीनगर शहरा पर पटन कस्बे में अंधाधुंध फायरिंग की थी और इस फायरिंग के नतीजे में 12 निहत्ते कश्मीरी शहीद, 80 से जायद शदीद जख्मी हुए। काबिज फोर्सेस ने कई रिहायशी मकानात को नजर आतिश किया। अफगान सूबे बदख्शां में तालिबान रजीम की गिरफ्त कमज़ोर पड़ने लगी। यफ्तल, ज़ीबक, अर्गो और कशम में तालिबान के फौजी ठिकानों पर मज़ाहमती ग्रुपों के हमलों में शिद्दत। पुलिस और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर समेत अहम सरकारी इमारतों का कंट्रोल हासिल कर लिया। रेडियो फ्री यूरोप के मुताबिक तालिबान के सख्त तर्ज हुक्मरानी से मकामी आबादी में भी बेचैनी बढ़ गई। इसराइल के गजा पर हमले रुक नहीं सके। दीर अल बलाह में अल अक्सा अस्पताल के करीब अद्वियात का जखीरा बमबारी करके तबाह कर दिया गया। हमले में एक शख्स शहीद। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक 48 घंटों में 8 अफराद शहीद हो गए। स्पेन के साहिली शहर सियोटा में तारिकीन वतन की भगदड़ के दौरान हलाकतों की तादाद 67 हो गई। मराकश से हजारों तारिकीन वतन समंदर में तैर कर स्पेन पहुंचे थे। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पर रूस के मिसाइल हमले। रॉयटर्स के मुताबिक शहर में 1 दर्जन से ज्यादा जोरदार धमाके सुने गए। हमले में मजीद 9 अफराद हलाक हो गए। यूक्रेन ने जवाबी हमलों में 1 लाख टन वजनी रूसी जहाज को ड्रोन हमले से नकारा बनाया। रिफाइनरी पर हमले। कॉमनवेल्थ गेम्स के जैवलिन थ्रो मुकाबलों में पाकिस्तान के अरशद नदीम टाइटल के दिफा में नाकाम। गोल्ड मेडल के मुकाबलों में 9वें नंबर पर रहे। श्रीलंका के रमेश ने 89.75 मीटर की थ्रो करके सबको पीछे छोड़ दिया। भारत के नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पर रहे। कॉमनवेल्थ गेम्स के मुकाबलों में पाकिस्तानी बॉक्सर फातिमा जहरा गोल्ड मेडल हासिल करने में नाकाम। 7 किलोग्राम कैटेगरी में फातिमा जहरा कनेडियन हरीफ के हाथों शिकस्त के बाद कांसी का तमगा हासिल कर सकी। यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस की जानिब से वर्ल्ड कप के बायकॉट की धमकी काम कर गई। फीफा के सदर ने आलमी फेडरेशन की निजकारी से मुतालिक मंसूबा तर्क करने का ऐलान कर दिया।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। मैच के लिए पाकिस्तानी टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। वेस्ट इंडीज को इससे पक्की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को दूसरे हॉकी टेस्ट मैच में भी शिकस्त दे दी। 1 के मुकाबले में 3 गोल से फतह समेटी पाकिस्तान को 4 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। स्वीडन के 11 सोलसबर्ग ने फिनलैंड कार रैली में बढ़तरी हासिल कर ली। वेल्स के एल्फन एवंस ने दूसरी पोजीशन हासिल की। फिनलैंड वैली का दूसरा रोज तेज बारिश से मुतासिर रहा और ड्राइवर्स को शदीद परेशानी का सामना भी रहा।